محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي العمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعده في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على हमारे नबी से हमारे नबी से जिसे प्यार हो हमारे नबी से हमारे नबी से जिसे प्यार होगा अरे वही बाग जन्नत का हकदार होगा। मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमारे नबी से अभी अभी हजरतुल अल्लामा मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब मद्दजुल्लाहुल आली व नूरानी इनकी जुबान से हक्कानी इरफानी नूरानी बयानात आप लोगों ने समाअत फरमाई। आखिरी में जो पैगाम इन्होंने दिया मफहूम ये था सबसे ज्यादा यानी जान से भी ज्यादा प्यार करो किससे? आका मुस्तफा से। और वही बात मैं शेर के अंदर कह रहा हूं, जो मेरे आका का गुलाम है वही बागे जन्नत का हकदार है। और दुआ सर पढ़ूंगा मोहब्बत के साथ। आप लोग सारा मजमू हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हमारे नबी से
जिसे प्यार होगा अरे वही बाग जन्नत का हकदार होगा हमारे नबी से। ओ पुल से गुजरेगा खरामा खरामा, ओ पुल से गुजरेगा, ओ पुल से गुजरेगा खरामा खरामा, ओ पुल से गुजरेगा खरामा खरामा, जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा हमारे नबी से। जिसे प्यार होगा अरे वही बाग जन्नत का हकदार होगा हमारे नबी से। সমাবিত সম্মুখীন গোলামানি মুস্তাফা পর্দা নসিন মাতা ও ভগ্নীগণ, আমন্ত্রিত উলামায়ে কেরাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সমস্ত তারিফ ও প্রশংসা মহান করুণাময় আল্লাহ পাক রব্বে কায়নাতের জন্য, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, অক্ষয় অব্যয় ওয়ানাদি, চিরস্থায়ী চির বিরাজমান। যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে পবিত্র মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন, আসুন শুরুতেই সে মহান আল্লাহর প্রশংসা করি, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। পরে পরে অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমির আল্লাহ জনাবে আব্দুল মুতাল্লিবের শ্রেষ্ঠ পোতা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ব্রাদার, এই জলসা কমিটির যে নওজওয়ান ভাইগণ আছেন, একটা আবেদন রাখা হয়েছে, হুজুর আমাদের এই জায়গাতে আপনি উর্দু জবানে জলসা করবেন। তো বিষয়টা হচ্ছে আপনার একদিকে যেমন আপনার ওনাদের আবদার একটু রাখতে হয়, তো অপরদিকে আপনার একটু চিন্তারও বিষয়, তার কারণ আমাদের মাতৃ জবান উর্দু নয়, বাংলা। অতএব যদি আমি উর্দু বলি তো মনে হয় সবার পক্ষে আপনার বোঝা সম্ভব হবে না। তো কিছুটা ইনশাআল্লাহ আপনাদের দিকে লক্ষ্য রেখে আর আমার কমিটির ভাইদের এই আবদার আবেদনকে মাথায় রেখে আমি দুটো জবানেই চেষ্টা করব আপনাদেরকে পুরা দেওয়ার। অবশ্যই ইতিপূর্বে আপনার একজন যোগ্য ব্যক্তির মুখ হতে যথেষ্ট আলোচনা আপনারা শুনলেন, তবে আমাকে বহু দূর থেকে আপনারা নিয়ে এসেছেন, দাওয়াত আপনারা করেছিলেন, কবুল করেছিলাম। আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া কি আল্লাহ আপনাদের স্টেজ পর্যন্ত আসার শক্তি দিয়েছেন। তার কারণ আসবো নাই চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু আমার ভাই জাহিদুল বাবু বারবার তার আশার আবেদন আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নাই। তবে শারীরিক দিক থেকে বাবু আমি সুস্থ নই, তার কারণ বিগত মাসের 16 তারিখ আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আর সবে মাত্র অপারেশন করা 34 দিন হলো। কলার বোনের একটা হাড় ভেঙে গেছে,
যে আমার এখন ক্ষমতা নাই কি আপনার হাত আমি মাথা পর্যন্ত তুলতে পারি, অতএব বেশিক্ষণ বসে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বিরাদার, আপনাদের যদি মোহাব্বত সঙ্গ দেন তো ইনশাআল্লাহ কোরআন ও হাদিসের আলোকে অবশ্যই আপনাদেরকে কিছু শোনাবো মনে থাকার মতো। সবাই আমার আলোচনা শোনার জন্য রাজি আছেন তো বাবু? আমাকে দেখবেন না, আমার ভাই বসেছিলেন চেয়ার ভর্তি হয়ে গেছিল, কিন্তু আমার চেয়ার ভর্তি হবে না। তার কারণ আমার বাবু আল্লাহর রহমত, আজ বিগত আপনার 18-19 বছর শরীরে এরকমই আছে। তো বহু জায়গাতে হয় আপনার যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করে यही मौलाना हारून है। उड़ीसा गेलाम धामनगरे तो सब लोग देखते से वेस्ट बंगाल से मौलाना हारून जो आने का वादा किया था आया? बोले हाँ। कहाँ है? यहाँ। लोग तो आज से बाबू दूर थे के देखे कि मुसाफा करे ना, बोले यही मौलाना हारून है। बोले हाँ यही मौलाना, यही मौलाना है। बोले हाँ भाई यही मौलाना। बोले ठीक से बोलो मौलाना है या मौलाना की सागरिद है? बोले ना भाई ये सागरिद नहीं, ये मौलाना है। तो माशाल्लाह আমাকে নয়, চেহারা নয়, তবে আমার চেহারা দেখুন, তার কারণ যতক্ষণ দেখবেন তো শোনার আলাদা নাকি আর দেখার আলাদা নাকি। आप लोगों ने शायद सुना होगा हजरत बिलाल, सुना है कि नहीं? हजरत बिलाल हबसी क्या था? काला था। हजरत बिलाल हबसी कैसा था? बोलिए कैसा था? काला था, गोरा नहीं था। गोरा और काला समझते हैं ना आप लोग? गोरा नहीं था बल्कि काला था। सूरत कैसा था? काला था। बाल कैसा था? घुघरी था। बाल कैसा था? कुकड़ी थे। हजरत बिलाल कोई नहीं पूछता था, कोई पूछता नहीं था। हजरत बिलाल हबसी जब से मेरे आका का गुलाम बन गया, जब से मेरे आका का गुलाम बन गया, हजरत बिलाल का शान बढ़ गया, हजरत बिलाल का मर्तबा बढ़ गया, हजरत बिलाल का रुतबा बढ़ गया। हजरत बिलाल का रुतबा कैसा बढ़ा? आका ने हजरत बिलाल को मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना दिया, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना दिया। हजरत बिलाल जब तक बिके ना थे, हजरत बिलाल को कोई पूछता ना था। और हजरत बिलाल जब बिक गया, किससे बिक गया? मोहम्मद के पास बिक गया। तो क्या हुआ? शायर कहता है जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था। या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिरादर, अल्लाह की कलाम पाक से जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने की शर्फ हासिल की है, ये 30वां पारा है। और मैं समझता हूँ 85% आदमी ये आयत जो है ज़बानी याद है। ज़बानी याद है ना आप लोगों को? इन्ना आतैना कल कौसर याद है ना भाई? किस किस को याद है? हाथ उठा के बोलिए तो। इन्ना आतैना कल कौसर, माशाल्लाह माशाल्लाह। 85 नहीं है, 95% लोगों को याद है। इंशाल्लाह दिल थम के बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। इंशाल्लाह इसी आयत के तहत मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। तो भाई ये जो कमेटी वाले हैं, इन लोगों के और एक भी चाहत के आबदार हैं, बंगला जबान में आबदार कहते हैं कि हुजूर आप एक काम कीजिए, पहले जो है तकरीर से पहले आप एक मीठा सा नात सुना दीजिए। हम लोग जो मिलाद नबी का जो आयोजन की है, इसे तिहाद से एक नात सुना दीजिए। आप लोग नात सुनेंगे, नात सुनेंगे इंशाल्लाह बांग्ला जबान में या उर्दू जबान में? पहले उर्दू जबान में सुन लीजिए, उसके बाद बांग्ला जबान में सुनाऊंगा। सुनने के लिए तैयार है साहब? माशाअल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। रहमतें दो आलम के बज़्म जो सजाएंगे, रहमतें 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 तो आलम के बज़्म जो सजाएंगे। रहमतों की बारिश में
वही नहाएंगे। रहमते रहमते दो आलम के बज़्म जो सजाएंगे। बामुदर 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 गली कूचे मोमिनो सजा दो तुम। आप लोग सजना सवरना समझते हैं ना, ये जो सजाया फूलों से सजाया ना, और 12 रबीउल अव्वल को भी आप लोग सजाते हैं ना। सुन लीजिए कान खोलकर, जो लोग 12 रबीउल अव्वल का खुशी मनाते हैं, नबी के महफिल को फूलों से सजाते हैं, शायर क्या कहते हैं? बामुदर गली कूचे मोमिनो सजा दो तुम। और क्या खबर मेरे आका, क्या खबर मेरे आका किस गली से आएंगे। रहमते रहमते दो आलम के बज़्म जो सजाएंगे। रहमते रहमते दो आलम के बज़्म जो सजाएंगे। बस इन्ना आतीना कल कौसर जो आयत करीमा तिलावत की खुतबे के बाद हजरत मेरे आका के चाचा हजरत अब्बास, क्या नाम बताया भाई? और जोर से बोलिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं इस जबान को। हजरत अब्बास ईमान लाया आका के ऊपर, गुफ्तगू हो रही है। आका जी मैं आपको एक बात बताऊं, कौन कहता है? हजरत अब्बास। आका जी मैं आपको एक बात बताऊं। आका ने फरमाया चाचा बोलिए। तो हजरत अब्बास ने फरमाया आका ये उस दिन की बात है जब आप 40 रोज के थे। मचल के बोले आप जब 40 रोज के थे, जब हम हालिमा के घर आपको देखने गए थे। बोलो और जोर से बोलो। मेरे आका ने फरमाया चाचा ये तो दुनिया में आने के 40 रोज की बात है। ये तो दुनिया में आने की 40 रोज की बात है। आका ने फरमाया चाचा अगर आप चाहें तो मैं आपको उस वक्त की बात बता दूं जब मैं आपके माँ के पेट में था। हजरत अब्बास हैरान रह गए, आका को मुंह को देखने लगे। मेरे आका ने फरमाया चाचा जब मैं आपके माँ के बतन में था, जब मैं माँ के सुख में मदर में था, आका ने फरमाया चाचा उस वक्त अल्लाह के हुक्म से जो कलाम चलती थी मेरे आका ने फरमाया चाचा जब कलाम चलती थी अल्लाह के हुक्म से मैं अपने माँ के पेट से ही उस चलने वाले कलम की चरचहराहट को सुनता था। आका बस ये नहीं है, मेरे आका ने फरमाया चाचा सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। जब मैं अपने माँ के पेट में था और अल्लाह के हुक्म से कलाम उम्मती की तकदीर को लिखता था तो मैं मोहम्मद अपने माँ के बतन से ही उस उम्मती को पहचान लिया है। मेरे आका ने क्या फरमाया चाचा যখন আমি মায়ের পেটে ছিলাম, একটু বাংলা করে দিই না চাচা, যখন মায়ের পেটে ছিলাম আল্লাহর হুকুমে যে কলম চলতো আর ওই কলমের চলার আওয়াজ আমি মায়ের কান হতে শুনতে পেতাম। আর যখন আমার কলম আমার উম্মতির ও তাকদীরকে লিখতো তো আমি নবী মুস্তাফা আমার মায়ের পেট হতে আমার ওই উম্মতির চেহারাকে দেখে নিয়েছি, আমি চিনে নিয়েছি। बिरादर मैं यही नहीं कहता हूँ, मैं हवाई फायर नहीं कहता हूँ। नोट कर लो, किताब का नाम क्या
है? किताब का नाम क्या है? मदारिजुन नबुवा। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? ज़ियाउन नबी। और किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? माशाअल्लाह मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक। किताब का नाम क्या है? सीरात मुहम्मदिया। किताब का नाम क्या है? ज़ियाउन नबी। किताब का नाम क्या है? सीरात रसूल अरबी। और नहीं बोलूंगा, आगे चलिए। आका फरमाते हैं लक़द कुन्तु अस्माउ सरीरल कलाम अलल लौहिल महफूज इज़ा कुन्तु फी बत्नि उम्मिही। आका ने फरमाया मैं उस वक्त आवाज को सुनता था। একটু ভাবুন তো আমি বলেছি দুটো মিস করে বলবো যাওয়ার কাউরি অসুবিধা না হয়, है ना একটু ভাবুন তো বিরাদার। আল্লাহ পাকের নবী যদি মায়ের পেট হতেই কলমের চলার আওয়াজ শুনতে পান তো আজকে হুগলির সরজমিন হুগলির মাটি হতে যদি আপনারা আমার নবীর উপরে দরুদ পড়েন তো নবী মদিনা হতে শুনতে পাবেন কিনা? বলো 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 শুনতে পাবেন কিনা? শুনতে পাবেন। এই বিশ্বাস আমরা সুন্নি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানুষ আমাদের আছে, আছে কিনা? চলো বিরাদার এক মর্তবা আলহামদুলিল্লাহ পড়লো। আকা ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। आका ने फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कितने फिरकों में? 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। सबके सब जहन्नामी होंगे। आका सबके सब जहन्नामी होंगे? बोले हाँ सबके सब जहन्नामी होंगे ला मिल्लतन वाहिदा, मगर सिवाय एक जमात के। बोलो। आका ने फरमाया सबके सब जहन्नामी होंगे सिवाय एक जमात के। साहबाए किराम ने अर्ज किया आका वो कैसी जमात होगी जो जन्नती जमात है? बोलो ना, मुस्कुरा के बोलो। ये मुस्कुराना भी मेरे आका के सुन्नत है। हाँ मुस्कुराना भी आका की सुन्नत है। मगर याद रखो मुसलमानों ये मुस्कुराना इसका क्वालिटी तीन क्वालिटी कितने हैं? बोलिए बोलिए। तीन क्वालिटी। वजू किया आपने नमाज के लिए, नियत कर ली नमाज का अल्लाहु अकबर। अब नमाज के अंदर क्या किया? मुस्कुरा दिया। इसका मसला अलग है। नमाज के अंदर अपने हंस दिया, इसका मसला अलग है। नमाज के अंदर अपने कहकालना जो इसको कहते हैं कहकालना कर दिया, इसका मसला अलग है। मुस्कुराना क्या है? मुसलमान आप लोगों को मसला समझना है। मुस्कुराना किसको कहते हैं? हंसना किसको कहते हैं? कहकालना किसको कहते हैं? याद रखो मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। मुस्कुराना उसी को कहते हैं मुस्कुराया मगर खुद ना सुने कोई भी ना सुने। बोलो बोलो बोलो। मुस्कुराना किसको कहते हैं? खुद ना सुने कोई भी ना सुने। अच्छा हंसना किसको कहते हैं? हंसना उसको कहते हैं जो खुद सुने कोई भी ना सुने। ये है हंसना। नमाज के अंदर किसी ने अगर मुस्कुरा दिया, नमाज के अंदर किसी ने अगर मुस्कुरा दिया तो नमाज भी हो गई, नमाज भी हो गया, वजू भी रह गई। नमाज भी हो गया, वजू भी रह गई। अगर नमाज के अंदर किसी ने हंस दिया, नमाज के अंदर किसी ने हंस दिया यानी हंस दिया किसको कहते हैं? यानी खुद सुन लिया। तो इसका मसला क्या है? सुनना मुसलमानों, गौर से सुनो। नमाज के अंदर अगर किसी ने हंस दिया यानी अपना आवाज जो है अपने कान में सुन लिया, आका फरमाते हैं सुन लो तुम्हारा वजू तो रह गई मगर नमाज चला गया। जोर से बोलो। वजू चले গেছে, নামাজ চলে গেছে, वजू কিন্তু আছে। কোনটাকে বলে? আপনি হাসলেন, আওয়াজ আপনার কান পর্যন্ত আসলো, এটাকে আপনার কি হলো? এটাতে আপনার वजू থাকবে কিন্তু নামাজ গেল। কাহকালানা কিসको कहते हैं? নিজে শুনলেন এবং পাশে যারা ছিল তারাও শুনলো। মুআজ্জাজ আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে আছেন তোমার নামাজও গেল, তোমার वजू গেল, আবার তোমাকে वजू করতে হবে। মুআজ্জাজ সামনে किराम কিন্তু बिरादर मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मुआज्जज सामने किराम
मैं जो कहता था इन्ना आतैना कल कौसर, मैं जो अर्ज कर रहा था इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ताला ने 30वें पारा के अंदर ये फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको हौज़ कौसर अता की। तो हौज़ कौसर किसको कहते हैं? लोग समझते हैं जो हौज़ कौसर वो जन्नत के रहने हैं जो हुजूर भर भर के पिलाएंगे, यही समझते हैं लोग। मगर आज सुन लो कौसर असल में क्या है। कौसर बार बार आप लोग पढ़ते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर असल में क्या है? तो हजरत अब्बास मेरे आका के चाचा है ना, हजरत अब्बास के बेटे का नाम अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे आका के चाचा ज्यादा भाई हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कलाम पाक की तफसीर किससे सीखी? तो खुद आका यानी नबी पाक से सीखी। फिर से बोल रहा हूं, जिसकी उस्ताद गुरु स्वयं अल्लाह के हबीब हो, सोचो मुसलमानों वो कैसा इल्म वाला होगा। हम जैसे आलिम होगा नहीं, आका ने सिखाया भी और आका ने दुआ भी की, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह मेरे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को यानी इस चाचा ज़ादा भाई को अल्लाह तो दीन की आलिम बना दे, दीन की आलिम बना दे, फाकी बना दे। मेरे आका ने दुआ की। याद रखो मुसलमानों, ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे हुजूर के चाचा ज़ादा भाई हैं। और एक आलिम है जिसका नाम इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम मुजाहिद किसकी शागिर्द है? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की शागिर्द हैं। मैं उजाला कर देता हूँ बांग्ला जबान में। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी पाकेर चाचा तो भाई, কোরআন শিখেছেন, কোরআনের তাফসীর শিখেছেন স্বয়ং নবীর কাছ হতে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে কোরআন শিখেছেন, কোরআনের তাফসীর শিখেছেন কে? ইমামে মুজাহিদ रहमतुल्लाह ताला अलैह। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो इमाम मुजाहिद से पूछा गया, ऐ इमाम मुजाहिद आप फरमा दीजिए इन्ना आतैना कल कौसर, असल में इसका माना क्या है? असल में इसका माना क्या है? तो इमाम मुजाहिद फरमाते हैं अल खैरा कुल्ला, सुन लो कौसर का माना है, कौसर का माना है हर खैर का कुल अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को अता कर दिया। पहले आप लोगों को ये समझना होगा खैर किसको कहते हैं, खैर खैर किसको कहते हैं। आगे আপনাদের বুঝতে হবে कि खैर কাকে বলে। তো বিরাদার আসুন, খায়ের বলা হয় ভালাইকে। কাকে বলে বাবা? একটু জোরে বলুন, একটু আমার জন্য টাপ, তার কারণ দুটো জবানে আমাকে নিতে হবে। খায়ের বলা হয় ভালাইকে। আচ্ছা, इमाम मुजाहिद बोलते आছেন अल खैरा कुल्ला, यानी अल्लाह ताला আমার নবীকে সমস্ত ভালাই দান করে দিয়েছে। कुल क्या होता है? इमाम मुजाहिद फरमाते हैं बात नहीं आता की अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को कुल अता कर दिया। कुल किसको कहते हैं ये भी समझना चाहिए। बोलिए ये क्या है? बोलिए ना, कोई भी बोलिए। ये मोबाइल का कवर है ना? अच्छा, ये कोई मोबाइल कहेगा जब से बोलो क्यों मोबाइल बोलबे बोलबे ना। अच्छा, এটা যদি খুলে দি বিরাদার, এটা কি বলবে? এটা কি বলবে বলুন? এটাও মোবাইল है, ये बैक कवर है ना? माशाल्लाह। ये जो है जूझ है, ये क्या है? ये कवर जो है ये जूझ है। बैटरी क्या है? जूझ है। सिम कार्ड क्या है? जूझ है। मेमोरी कार्ड क्या है? जूझ है। सबको मिला दिया। अब इसको लोग क्या कहेंगे? मोबाइल कहेंगे ना? इसी को कुल कहते हैं, इसी को कुल कहते हैं। एक होता है कुल और एक होता है जूझ। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं अल खैरा कुल्ला, अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को, अल्लाह ताला ने मेरे हबीब
हबीब को हर खैर की कुल अता कर दिया। যত রকমের ভালাই আছে সমস্ত ভালাইর সমস্তটাই আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে দান করে দিয়েছেন। জোরে বলেন সুবহান। मुअज्जज़ सामने किराम, तारीकी में भलाई है या रोशनी में भलाई है? अंधेरी में भलाई है या रोशनी में भलाई है? अंधकारे भलाई আছে না রোশনীতে ভালো আছে? রোশনীতে ভালো আছে। মাশাআল্লাহ। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, যদি তা হয় বিরাদার, ইতিপূর্বে আপনার আব্বাস ভাই বলছিলেন আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে নূর বানিয়েছেন। কি বানিয়েছেন বিরাদার? জোরে বলো, কি বানিয়েছেন? নূর বানিয়েছেন। একটু উজালা করি। আকা মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন জিবরিল আমিনকে বলতে আছেন, বলে ও জিবরিল, ও জিবরিল, তোমার আসল सूरतটা একটু আমাকে দেখিয়ে দাও, তোমার আসল रूपটা আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया, ओ जिब्रील तेरी असली सूरत में तू आजा, मैं मुस्तफा तुझको एक बार देखूंगा। जिब्रील ने फरमाया, आका अल्लाह ताला ने मुझे 600 पर अता की है, अगर उस 600 पर को मैं खोल दूंगा तो सारी कायनात छोटी पड़ जाएगी, सारी कायनात छोटी पड़ जाएगी। जिब्रील ने फरमाया, आका अगर मुझे असली सूरत में देखना है, असली सूरत में देखना है तो आगा इस जमी पे नहीं, आपको सिदरा पर आना होगा। आका ने फरमाया, कहा जिब्रील तुझे असली सूरत में देखने के लिए सिदरा पे जाना होगा। जिब्रील ने फरमाया, आका আল্লাহ তাআলা আমাকে 600টা ডানা দিয়েছে, যদি আমি খুলে দিই তো গোটা দুনিয়াটা আমার ডানার তলে চলে আসবে, দুনিয়া ছোট পড়ে যাবে। अब तो বাংলা জবানে বললাম, সবাই বুঝতে পেরেছেন? বলুন সুবহানাল্লাহ। তো জিবরিল তোমাকে দুনিয়ায় দেখা যাবে না? না। কোথায় দেখবো? জিবরিল বলছেন কি, হুজুর আমাকে আসল সূরাতে দেখতে হলে সিদরাতুল মুনতাহায় আসতে হবে। জোরে বলো। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात थी, मेराज की रात थी, जिब्रील आमीन साथ थी। जर से बोलो, मेराज की रात थी, जिब्रील आमीन साथ थी। जब मैं सिदरातुल मुंतहा तक पहुंच गया, मेरे आका ने अर्ज किया, बोले ओ जिब्रील, मेरे आका ने फरमाया, बोले ओ जिब्रील तूने एक वादा किया था, क्या तुझको याद है? जिब्रील आमीन चुप हो गए। आका ने फरमाया, बोले जिब्रील तूने ही दुनिया में कहा था, बोले या रसूल अल्लाह मुझे असली सूरत में देखना हो तो सिदरातुल मुंतहा पर आना पड़ेगा। ओ जिब्रील मैं मोहम्मद आज सिदरातुल मुंतहा में आ गया, अब तू असली सूरत में आ जा। जिब्रील आमीन ने क्या किया? जिब्रील आमीन ने 600 पार खोल दिया, असली सूरत में आ गया। मेरे आका ने जिब्रील को असली सूरत में देख लिया। अब आका चल रहे हैं, आका चल रहे हैं, आका आके बढ़ रहे हैं। जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपने तो मुझे असली सूरत में देख लिया, आप मुझे भी अपना असली सूरत दिखा दीजिए, आप मुझे भी अपना असली सूरत दिखा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील सुन लो, तुम्हें असली सूरत में देखने के लिए सिदरातुल मुंतहा पर आना है, मगर मैं मोहम्मद सुन लो, मुझे असली सूरत में देखना हो तो सिदरातुल मुंतहा पार करके आना है। याद रखो मुसलमानों, सोचो, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तूने कहा था सिदरातुल मुंतहा पर आना पड़ेगा, मगर मैं मोहम्मद कहता हूं सिदरातुल मुंतहा पार करके आना पड़ेगा मुझे असली सूरत में देखने के लिए। बोले मुसलमानों, किसी में ये मजल है सिदरातुल मुंतहा को पार करे? है किसी में ये मजाल? है किसी में ये हिम्मत? है किसी में ये पावर? याद रखो मुसलमानों, किसी में ये पावर नहीं है सिदरातुल मुंतहा को भेद करके बाउट करके आगे बढ़े। है पावर? नहीं है। जिब्राइल रुक गए, या रसूल अल्लाह यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच तक जाने की कोई इजाजत नहीं। जोर से बोलो। अच्छा सुन लो, अल्लाह का ये एक प्यारे नबी जिसको कलीमुल्लाह कहते हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है ना? मूसा कलीमुल्लाह। फरमाया, रब्बी अरनी, अल्लाह मैं तुझको एक बार देखूंगा। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी या मूसा, तुम मुझे देख नहीं सकेगा। फिर भी जिद पे अड़ गए हजरत मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मूसा देखो कि आओ कोहे तुर पर आ जाओ, मेरे आका नूर है या खाक है, उजाला हो गया इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मूसा
कोहे तूर पर आ जाओ। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर चले गए। अल्लाह ताला ने अपनी एक नूर तजल्लियात की रोशनी जो है कोहे तूर पर डाला। कोहे तूर क्या हुआ? कोहे तूर बर्दाश्त ना कर सका, कोहे तूर छल गया, कोहे तूर जल गया और जल के राख बन गया, जल के राख बन गया। मगर याद रखो मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं जब मेराज की रात अल्लाह ताला के साथ मुलाकात करने के लिए मैं मोहम्मद गया तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दस्ते मुबारक मेरे दो सानों के अंदर रखा। फवजदतु बैनहा सादिया। मेरे आका फरमाते हैं मेरे अल्लाह ताला ने अपने कुदरती दस्ते मुबारक जब मेरे सानों के अंदर रखा, दो सानों के बीच में रखा तो क्या हुआ? मेरे सीने में ठंडी महसूस हुआ। मुसलमानों जरा सोचो, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने गए, अल्लाह की एक नूरी तजल्ली जब पड़ गया तो कोहे तूर जलकर रख बन गया। रख समझते हैं ना आप लोग? किसको कहते हैं? यानी बांग्ला जबान में जिसको छाय कहते हैं ना, छाय जलकर राख हो गया। मगर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरे दो शानों के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की दस्ते मुबारक यानी कुदरती हाथ, जरूर बोलो हाथ, जन मोहम्मद ठीक है, कुदरती हाथ। अगर कोई मुझे पूछे मौलाना साहब अल्लाह का हाथ कैसा है तो मैं बता नहीं सकूंगा। मायालु को बिशानी ही जैसा होना है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अल्लाह ताला ने हुजूर के दो शानों के अंदर क्या रखा? जोरे बोलो, जोर से बोलो, अपनी दस्ते कुदरत रखा। हुजूर फरमाते हैं मुझे सीने में ठंडी महसूस हुई। जोर से बोलो। नबी बोलছেন कि আল্লাহ কুদরতের হাত আমার সিনার আমার দুই শানুর রাখলেন মধ্যে, তা আমি আমার সিনাতে ঠান্ডা বুঝতে পারলাম। সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার একটু আন্দাজ করুন, মুসা আলাইহিস সালাম কোহে তুরে গেলেন, আল্লাহ নূর তাজাল্লিতে কোহে তুর পুরো আপনার ছায় হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা আকা মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপনার পিঠে দস্তে মুবারক রাখলেন। নবী আমার চললেন না, নবী আমার পড়লেন না। মুআজ্জাজ কেন? पता ये चला कोहे तूर जो है वो मिट्टी है, वो खाक है, खाक था तभी तो जलकर राख बन गया। मगर मेरे आका खाक नहीं है, मेरे आका मिट्टी नहीं है, तभी तो मेरे आका नहीं जलाया गया। इसीलिए कहते हैं याद रखो मुसलमानों, नूर से नूर को सुरूर हासिल होता है। उसी से वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी की तरफ गए थे। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी की तरफ गए थे। याद रखो मुसलमानों। चलो इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को, अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को नूर बनाया, कुल नूर बनाया, हिस्सी नूर बनाया, मानवी नूर बनाया, यानी जाहिर नूर बनाया, बातिन नूर बनाया, चारों तरफ से नूर बनाया। चलिए मुअज्जज़ सामने किराम, अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को नूर बनाया, अल्लाह ताला ने नूर बनाया, कुल बनाया। अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को इल्म दिया, इल्म गायब दिया, कुल इल्म गायब दिया। जोर से बोलो। ए बिरादर, कोनो लोग बोले कि नबी के ज्ञान दिएছেন আল্লাহ, কিন্তু বেশি না কম দিয়েছে। অত বেশি নয়, কম কম দিয়েছে। বিরাদার কেউ আপনার গণনার চেষ্টা করে, কিন্তু বিরাদার আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে ইলম দিয়েছেন। ইলম ভালাই না খারাপি? একটু জোরে বলুন, ভালাই না খারাপি? আপনারা শিক্ষিত মানুষ বিরাদার, আমি আন্দাজ পাল্টে ওয়াজ করছি বাবু, আর পুরা আমি দিতে পারবো না। আগেই বলেছি শারীরিক কন্ডিশন যা, পুরা দেওয়ার ক্ষমতা আমার শরীরে এই মুহূর্তে নেই। আসুন একটু দিল লাগান, মোহব্বতের সহিত শুনুন। ইলমে ভালাই আছে না খারাপি আছে? মাশাআল্লাহ। তো ইলমে যদি আপনার ভালাই থাকে তাহলে সমস্ত ভালাই আল্লাহ আমার নবীকে দিয়েছেন। তাহলে ইলম যে আমার নবীকে আল্লাহ দিয়েছেন, সমস্ত ভালাই এই ইলম ভালাই, তো সমস্ত আপনার ইলমে গায়েব দিয়েছেন না আপনার কম দিয়েছেন? একটু জোরে বলুন, ইমানদারি বলুন। কুল ইলমে গায়েবের মালিক আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে বানিয়ে দিয়েছেন।
কিন্তু মনে রাখুন বিরাদার, আমি উজালা করব, আমি পরিষ্কার করব, ক্লিয়ার করব। মনে রাখুন আপনি নবীর আলোচনা শুনছেন বিরাদার, দুনিয়াতে সবচাইতে যদি আপনার বড় আল্লাহর কোনো নিয়ামত আছে তে একমাত্র আমার আকা মুস্তাফা, একমাত্র আমার আকা মুস্তাফা। মুআজ্জিজ সামনে কিরাম, আল্লাহ পাক কোরআনে বলতে আছেন ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, আল্লাহর নিয়ামত আপনারা গণনা করে শেষ করতে পারবেন না। সমস্ত কিছু আল্লাহর নিয়ামত, কিন্তু বিরাদার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে, সমস্ত নিয়ামতের চাইতে এ মুআজ্জিজ সামনে কিরাম সবচাইতে বড় নিয়ামত আমার নবী। তার কারণ বিরাদার, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠালেন। মুআজ্জিজ सामने किराम याद रखो, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत शीश को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को भेजा मगर एहसान नहीं किया, हजरत अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत कलीमुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल जबीहुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं कहा, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा रूहुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं कहा। मगर याद रखो मुसलमानों, जब अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल को तेरे मेरे आका को दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला यूं फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामत तुमको दे दिया गया। बिरादर, ये अल्लाह के कलाम है। पारा नंबर 3 है। पारा नंबर कितना है? 3 है। सूरह अल इमरान है, आयत नंबर 164 यानी 164 नंबर आयत है। सबसे बड़ी नियामत क्या है? मेरे आका। जोर से बोलो, क्या है? मेरे आका। तो आका की आप गुफ्ता को सुन रहे हैं। आका के शान में अल्लाह ताला ने मेरे आका को इल्म दिया, कुल इल्म दिया। कितना दिया बोलो? सारे इल्म दे दिया। तभी तो मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला रफ़अ लियद दुनिया व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा फ़अन्नमा नुज़ुरु इला व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा। ए बिरादर, अल्लाह ताला नबी आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह ताला ने इतना इल्म मुझको दे दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सारी कायनात को, सारी दुनिया को मेरे सामने रख दिया और मैं मोहम्मद अपने हाथी की तरह पूरी कायनात को देख लिया। जैसे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं सारी कायनात को मैं अपने हथेली की तरह देख रहा हूँ। बिरादर, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सारी कायनात को, सारी दुनिया को मेरे सामने रख दिया। इन्नल्लाह रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा। मैं मोहम्मद देख लिया सारी दुनिया को। मगर याद रखो, ये जो तर्जुमा है ये गलत है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया फ़अना अनज़ुरु, ग्रामेटिकल है, समझ लीजिए। फ़अना अनज़ुरु मकाम क्या था? नजर तू का मकाम था। यानी नजर तू का होता तो ये माना ये होता था कि मैंने देख लिया। मगर मेरे आका ने नजर तुका नहीं फरमाया। क्या फरमाया? फाना अनजुरु। बांग्लाते एक शुनुन, যদি নবী বলতেন কদ রাফা লিয়াদ দুনিয়া नजर तुका इलाहा, তাহলে মানে হতো কি আল্লাহ তাআলা গোটা দুনিয়াকে আমার সামনে তুলে ধরলেন। আমি মোহাম্মদ গোটা দুনিয়াকে দেখে নিলাম। বিরাদার, তাহলে এখানে মানে দাঁড়াতো একবার নবী দেখেছেন। কিন্তু বিরাদার, নবী আপনার নজর তুকা বলেননি। নবী আমার বলতে আছেন ফানা अनजुरु। कायदा क्या है? रफा ये फेल माजी है और माना अनजुरु ये जुमला इस्मिया खबरिया है। अगर जुमला फेलिया के जगह अगर जुमला इसमें आ जाए तो दवाम का फायदा देता है। दवाम किसको कहते हैं? मुसलमान। दवाम काके बोले? আপনাদের ভোড়া ভালা সহজ সরল মুসলমানের মাথায় ঢুকবে না। তার কারণ বিরাদার, যারা কমসে কম আলিম আছেন উলামায়ে কিরামের মাথাতে ঢুকবে। আবার যেমন তেমন আলিম আপনার কিছুই বুঝতে পারবে না। তার কারণ এটা হচ্ছে ইলমে বালাগত।
জুমলা ফেলিয়ার জায়গায় জুমলা ইসমিয়া যদি চলে আসে তাহলে দাওয়াম হয়। দাওয়াম কাকে বলে? একটা হচ্ছে দাওয়ামে তাজাদ্দুদ আর একটা হচ্ছে দাওয়ামে সাবাত। দাওয়ামে তাজাদ্দুদ কাকে বলে? যাতে আপনার ইনকিতা জিসমে ইনকিতা কা ইমকান होता है, যা আপনার কখনো হয় কখনো হয় না। মুআজ্জিজ সামনে কিরাম বুঝা গেল দাওয়ামে তাজাদ্দুদ যেটা আমার নবীর জন্য আল্লাহ পাকের নবী বলতে আছেন, শোনো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে ও জ্ঞান দিয়েছে, গোটা দুনিয়াকে আমার সামনে রেখে দিয়েছেন আমার আল্লাহ। আমি যখন ইচ্ছা হয়, আমি যখন মন হয়, আমি তখনই আমি গোটা দুনিয়াকে দেখি, আমার হাতের তালুর নাই। কিন্তু বেরাদার আল্লাহ তাআলা সব সুমাতে দেখতে আছেন, কিন্তু নবীও কি সব সুমাতে দেখছেন? যদি আমি বলি কি নবীও সব সময় দেখছেন, আল্লাহও সব সময় দেখছেন, তাহলে হয়তো আপনাদের ব্রেনে চলে আসবে তাহলে নবী আর আল্লাহ কি সমান সমান? আস্তাগফিরুল্লাহ মাআযাল্লাহ। আল্লাহ এবং নবী সমান সমান নয়। তার কারণ নবী হচ্ছেন মখলুক আর আল্লাহ হচ্ছেন খালিক। খালিক কাকে বলে? সৃষ্টিকর্তা। মখলুক তাহলে নবী কি সৃষ্টিকর্তা না মখলুক? নবী মখলুক। তাহলে নবীর দেখা আল্লাহর দেখা কি সমান? ব্রাদার শুনুন, নবীর দেখা আল্লাহর দেখা সমান নয়। তার কারণ আল্লাহ তাআলার দেখার মধ্যে একটা সেকেন্ডও বাকি নাই, সব সময় দেখতে আছে। কিন্তু স্বয়ং নবী বলতে আছেন, শোনো আল্লাহ আমাকে পাওয়ার দিয়েছেন, আমি যখন খুশি তখন দেখতে পাই, কিন্তু যখন আমি আল্লাহর ধ্যানে নিজেকে মগ্ন করে দিই, আল্লাহর প্রেমে আমি নিজে পাগল হয়ে যাই, তো দুনিয়ার কোন জিনিসের উপরে আমার খেয়াল থাকে না। বুঝা গেল মুআজ্জিজ সামনে কিরাম, যখন নবী আমার আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে যায় তো আর দুনিয়া বলে খেয়াল থাকে না, কোনো কিছু খেয়াল থাকে না। তাহলে দুনিয়া সেই সময়তে নবীর থেকে আপনার আলাদা হলো কি হলো না? বুঝা গেল বিরাদার, আল্লাহর দেখা নবী মুস্তাফার দেখা এক নয়, আল্লাহর দেখা আলাদা, নবীর দেখা আলাদা। কিন্তু বিরাদার নবী যেমন দেখে তেমন দেখা আপনার নয়, নবী যেমন দেখে তেমন দেখা কোনো পীরের নয়, নবী যেমন দেখে তেমন দেখা কোনো মৌলবীর নয়, নবী যেমন দেখে তেমন দেখা কোনো মুহাদ্দিসের নয়। বুঝা গেল বিরাদার, আল্লাহর পরে পরে আল্লাহর পরে পরে সবচাইতে শানওয়ালা, সবচাইতে রুতবাওয়ালা, সবচাইতে ভালো দেখনে ওয়ালা যদি কেউ আছেন তা উনি হচ্ছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমার মুস্তাফার মতো না কাউকে বানিয়েছেন, না কাউকে জোরসে বলো, না কাউকে বানাবে। মুআজ্জাজ একবার মোহব্বতে দরুদে পাক পড়ুন, বক্তব্যকে আগে নিয়ে যাই। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা মাওলানা मुहम्मद। ब्रदर ये जो हदीस पाक है इसमें एक लफ्ज आया दुनिया। क्या लफ्ज आया? जोर से बोलो क्या? दुनिया समझते हैं ना आप लोग? दुनिया। तो आका ने एक मर्तबा सहाबा किराम के मजमा में ये फरमाया, हुब्बिबा अलैया मिन दुनियाकुम सलासुन। ऐ मेरे सहाबियों, ये जो दुनिया है, ये दुनिया के अंदर मुझे 3 चीज पसंद